styles and formatting on a document. Today we are going to cover insert and use images in document. So in this topic we will be covering these various subtopics, that is option to insert image to document from various sources, in what different way we can insert images in our document. Then we will be discussing how to modify, resize, cropping and deleting images. Then we will be looking after various drawing objects and their properties, then creating drawing objects and changing their properties, and then applying groups and ungroup function on them. And then we will be discussing, at last we will be discussing positioning image in the text. There we will be looking at alignment, arrangement and text wrapping things. All these things we will be discussing. Okay, so let us start with this how to insert image in a document. In what different way we can insert image in a document. So for that, let us start Writer, open Office Writer, and there we will be using that thing. Okay, so this we have open Office Writer, and then what we have to do, here we have to apply this. First let me do it, this one. So in order to apply, in order to insert image, what we have to do, we have to click on insert and then click on this picture. So here picture, you can see two options are there, from file and another one is a scan. So from file means if you are using from file, then you can insert picture which are available in your computer in the form of a file. So if you are using this option, then you can insert picture which are available in your computer in the form of file, and from there what you can do, you can select any picture and you can insert it into your current document. Okay, for example, suppose I am selecting this one, double click on that, then what will happen, it will come inside your document. Okay, now that this picture has been inserted in our document. Okay, so here you see green dots are all around it. So using this green dot, what you can do, you can resize pictures. You can resize it like this, and uh, this when you are bringing your mouse here on the picture, it turns into this type of arrow. So by holding that, you can, what you can do, you can move the picture here and there in the document. Okay, so this is how we can insert picture and image in a in our document using from file, है ना. How to insert, पहले आपको क्या करना है, click on insert, देन यहाँ से आप जाओगे कहाँ पे, क्लिक ऑन पिक्चर. सो पिक्चर में आप देखोगे फ्रॉम फाइल ऑप्शन है यहाँ पे. सो फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे. सो यहाँ पे आप क्या जो है, सो जितना पिक्चर अवेलेबल है आप यहाँ से ब्राउजिंग भी कर सकते हैं. डिफरेंट लोकेशन में आप इमेज को देख सकते हैं, और जो इमेज आपको इंसर्ट करना है उस पर आप सिंपली, आपको क्या करना है, डबल क्लिक कर देना है. तो वो जो है सो इमेज इंसर्ट हो गया. अब यहाँ पे मेरा क्या था, पहले वाला इमेज सेलेक्टेड था, इसलिए क्या हो गया कि जो ये जो नया इमेज आया उसके जगह पे आ गया. इफ़ यू वांट टू इंसर्ट अनदर इमेज, देन सिंपली इसको अनसेलेक्ट करेंगे और फिर से जाएंगे इंसर्ट, देन हम जाएंगे पिक्चर में एंड फ्रॉम फाइल क्लिक करेंगे, और यहाँ से दूसरा जो भी पिक्चर आपको लेना है, मान लो ये लेना है, आप इसको क्लिक कर देंगे तो फिर जो है सो वो पिक्चर आ गया. तो यहाँ पे आप देखो दोनों पिक्चर आ गया. अगर आप इसको सेलेक्टेड रख करके आप इंसर्ट करोगे तो क्या होगा कि जो नया पिक्चर आएगा वो इसको रिप्लेस कर देगा. मीन्स सपोज करो कि यहाँ अभी राइट नाउ मेरा ये पिक्चर सेलेक्टेड है, अभी मैं कोई दूसरा पिक्चर लेता हूँ, फिर से क्लिक करूँगा इंसर्ट पिक्चर, देन फ्रॉम फाइल, और फिर से यहाँ पे मैं पिक्चर लिया, तो अब क्या हो जाएगा कि वो जो है सो जो पहले वाला पिक्चर था उसको रिप्लेस कर दिया नया वाला पिक्चर. सो दिस इज वन वे हाउ टू इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम फाइल इनटू योर करंट डॉक्यूमेंट. दूसरा तरीका क्या है आपको इंसर्ट करने के लिए, कि आप यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे और उसके बाद पिक्चर एंड देन क्लिक ऑन स्कैन. सो स्कैन
ऑप्शन को यूज करके इंसर्ट पिक्चर आप तभी कर सकते हैं जबकि आपका कंप्यूटर में इन स्कैनर लगा हुआ है। ताकि स्कैनर का काम क्या है, स्कैनर का काम है जो भी आप डॉक्यूमेंट डालेंगे उस पर, उसको क्या करेगा, स्कैन करके उसका एक डिजिटल इमेज बना देगा। सो डिजिटल इमेज को आप जो है सो फिर अपना डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि आप कोई बुक है, उसका कवर को आपको अपना डॉक्यूमेंट में डालना है, या कोई आपने पिक्चर ड्राइंग किया है, अपना नोटबुक में ड्रॉ किया है पिक्चर, अब उसको आप चाहते हैं कि अपना डॉक्यूमेंट में, जो डिजिटल डॉक्यूमेंट में उसको लाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप उसका पिक्चर इमेज पिक्चर लोगे मोबाइल से, और उसके बाद फिर अपना मोबाइल को कनेक्ट करके और उसको आप इंसर्ट में डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि उस जो आपने जिस पेज पे उसको ड्राइंग किया उसको स्कैनर में रख करके और फिर उसको स्कैन करेंगे, और यहाँ से आप जो है सो वो वाला ऑप्शन insert picture and from a scanner, then what you can do from there, you can click select the source and then you can insert the picture. Okay, so that is how we can insert picture from the from different means from our computer or from a scanner हम लोग ऐसे insert कर सकते हैं। ठीक है, अब इंसर्टेड पिक्चर को आपको डिलीट करना है तो सिंपली आप क्या करेंगे, जो पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे, या अभी राइट नाउ दिस पिक्चर इज सेलेक्टेड and simply you press the delete button, then the picture will be deleted. Suppose this picture I want to delete, press delete button, then the picture will be deleted. There is another way to insert picture from gallery. So how to insert picture from gallery? So गैलरी से पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है टूल पे। दीज जो स्टेप्स है वो स्टेप्स आपको ध्यान में रखना है, स्टेप्स ध्यान में रखना है, क्योंकि एमसीक्यू में स्टेप्स वगैरह जो है सो आपको बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। सो आपको क्लिक करना है टूल पे, और टूल में यहाँ पे देख लो, टूल में आपको गैलरी है, तो गैलरी पे क्लिक करेंगे तो अब एक गैलरी आ गया, इतना सारा पिक्चर। अब गैलरी में देखो डिफरेंट कैटेगरीज है पिक्चर का। सो अभी हम लोग, हमारा जो कैटेगरी सेलेक्टेड है एरो का, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोज आर देयर। नाउ यू कैन चेंज द कैटेगरी बैकग्राउंड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकग्राउंड्स आर देयर। Bullets, so different types of bullets are there. Then computers, so different form of computers we are getting here. Then diagrams, so these are different categories, so you can select any categories, and from that category you can select, you can bring any document in your picture, you can insert any picture इन योर डॉक्यूमेंट। जैसे सपोज करो ये वाला पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको आप ड्रैग करके यहाँ पे ला करके इमेज को आपको डॉक्यूमेंट में ड्रॉप कर देना, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप, यू नो। सपोज आप इसको ड्रैग करके इसको आपको लाना चाहते हैं, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको जो है सो आप यहाँ पे छोड़ देंगे। तो इस तरह से आप जो है सो कोई भी पिक्चर आप गैलरी से इंसर्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट द पिक्चर एंड क्लिक ऑन दैट, then that picture will come inside your, and फिर resize और उसको छोटा बड़ा करने का वही तरीका है, आप जैसे करना चाहते हैं उस तरह से उसको छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। ठीक है, सो कैसे कैसे पिक्चर इंसर्ट किया, एक तो था insert, click on picture, then click on from file. So the pictures available in the computer in the form of file that can be inserted. दूसरा तरीका है, अगर आपके कंप्यूटर में स्कैनर लगा हुआ है तो आप कोई जो है सो डॉक्यूमेंट, जो कोई भी आपने पिक्चर बनाया है या कोई पिक्चर आपके पास है, तो उसको जो है सो स्कैन करके फिर जो है सो आप डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। तीसरा क्या है, गैलरी से आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। तो गैलरी से पिक्चर इंसर्ट करने के लिए क्या करना था, click on tool, then click on gallery. So if gallery is already open, then what will happen, if you are clicking on gallery, then it will go it will be removed from there. So if you want to bring it back, then again you have to click on tools and then click on gallery, then again it will come there, and from there you can select any picture from different categories, and what you can do, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। सिंपली दिस इज हाउ पिक्चर्स कैन बी इंसर्टेड फ्रॉम in these different way in the documents. Okay, so अब इंसर्टिंग हो गया, पिक्चर को इंसर्ट कैसे करना है वो देख लिया, मीन्स अभी हमारा ये वाला चीज हो गया। what different way we can insert pictures, that we have done. Next we have to see modifying object, modifying pictures, how to modify picture. Okay, so that is what let us see. सो फिर से चलेंगे हम वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट में। ठीक है,
अभी यहाँ पे सारा पिक्चर को डिलीट कर दो, सो प्रेस एंड डिलीट, सिंपली आप डिलीट कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस गैलरी को भी हटा देते हैं, तो क्लिक ऑन दैट एंड क्लिक ऑन गैलरी, देन इट विल गो अवे। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, we have to insert one picture from file. Click on insert, then click on picture, and then take any picture. Suppose this picture I want, this one. So it is there now. इसको थोड़ा सा इधर उधर करके साइज वाइज छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो ये पिक्चर है, ये पिक्चर थोड़ा उतना विजिबल नहीं हो रहा है, so let us take another picture. ये उतना दिखाई नहीं दे रहा है, so दूसरा पिक्चर लेते हैं जो कि अच्छा से दिखे, ये वाला पिक्चर लेते हैं, ठीक है। ये पिक्चर आ गया, ये दिखाई दे रहा है, क्लियर है। सो इसको हम लोग रीसाइज करते हैं। रीसाइज मतलब आप इसका साइज भी छोटा करें, तो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन। आप इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, साइज को छोटा बड़ा कर रहे हैं, सो ये भी एक मॉडिफिकेशन का तरीका हुआ। दूसरा क्या है कि और किस तरह का मॉडिफिकेशन इसमें कर सकते हैं, तो आप जो है सो उसके लिए आपको पिक्चर टूल बार को लाना पड़ेगा। सो पिक्चर टूल बार देखो, पिक्चर टूल बार आपका यहाँ पे है, पिक्चर टूल बार। ये जैसे ही आप कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं, आप इमेज को इंसर्ट करते हैं, तो इमेज का साथ साथ आपका पिक्चर टूल बार जो है सो आपके पास में आ जाता है, ठीक है। सो पिक्चर टूल बार में आपको देखो क्या क्या ऑप्शन है। So using this picture toolbar, what you can do, you can apply different effect on your picture. Image जो भी inserted है उसमें आप जो है सो different अपडेशन, डिफरेंट इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे ये सारा ऑप्शन, क्या क्या ऑप्शन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे जैसे आप माउस ले जाओगे आपको दिख जाएगा फ्रॉम फाइल। तो ये तो फ्रॉम फाइल बता रहा है कि इफ यू वांट टू इंसर्ट एनी पिक्चर, न्यू पिक्चर, सो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर वही खुल जाएगा। आप कोई इमेज चेंज करना चाहते हैं, नया इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से भी आप पिक्चर टूल बार से भी ये फ्रॉम फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से फिर कोई नया पिक्चर आप इंसर्ट कर सकते हैं। सो दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। दूसरा ये जो है यहाँ पे देखो फिल्टर ऑप्शन है। सो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो दिस मेनी ऑप्शंस आर देयर। ये फिल्टर ऑप्शन में इतना सारा इमेज, इतना सारा ऑप्शंस है। सो व्हाट दीज ऑप्शंस आर देयर एंड व्हाट आर देयर इफेक्ट। सो देखो ये पहला ऑप्शन है इन्वर्ट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेयर दिस इन्वर्ट ऑप्शन इज प्रेजेंट। सो इन्वर्ट ऑप्शन इज प्रेजेंट इन द पिक्चर टूल बार, एंड इन पिक्चर टूल बार वेयर इट इज प्रेजेंट इन द, इट इज प्रेजेंट इन अंडर द फिल्टर टूल। सो फिल्टर, यहाँ पे फिल्टर के अंदर में क्या क्या ऑप्शन है, ये सारा ऑप्शन पड़ा हुआ है। सो यहाँ पे क्या है, इन्वर्ट है। सो इन्वर्ट पे अगर हम क्लिक करते तो क्या होता है, देखो इन्वर्ट पे क्लिक कर दिया तो क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव बन गया। नेगेटिव आपका जो पिक्चर अभी भी स्टूडियो में पिक्चर ये करते हैं, बनाते हैं स्टूडियो में, तो उसका नेगेटिव का कंसेप्ट आपको मालूम होगा। सो नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव फॉर्म। ओके, सो इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट बैक, देन अगेन क्लिक ऑन दैट, so it will be original form, in the original form. So these are the different things. ये स्मूथ, सो स्मूथनेस को बढ़ाना करने के लिए, स्मूथ करने के लिए, सो इस पे आप क्लिक करेंगे तो पिक्चर थोड़ा स्मूथ होगा। सो ये है शार्पनेस, शार्पनेस करने के लिए। सो माइनर इफेक्ट विल बी देयर, इट विल नॉट, समटाइम्स इट विल नॉट बी नोटिसेबल, यू कांट नोटिस इट, बट ये जो फोटो एडिटर्स होते हैं, जो आपका जो स्टूडियो में जो काम करते हैं, दीज टूल्स दे आर यूजिंग वेरी मच, है ना, टू डू सम स्पेशल इफेक्ट ऑन द पिक्चर दे आर क्लिकिंग विद देयर कैमरास, है ना। सो ये आपका इस तरह से बहुत सारा इफेक्ट इसमें है। जैसे एक ये क्या है, सोलराइजेशन, मतलब हो गया कि आपका जो है सो इसमें आप जो कितना आप इसको ये कर सकते हैं, जितना आप इसको बढ़ाएंगे वो क्या होगा, वो जो है सो उस तरह से आपका उसमें इफेक्ट आता जाएगा। सो दिस मेनी डिफरेंट इफेक्ट्स आर देयर। अब इसको हम जो है सो वापस कर देते हैं, इसको वापस कर देते हैं। तो इस पे क्लिक किया था, तो इसको फिर से हम जो है सो ये करके आप इसको एक मिनट, इसको कंट्रोल जेड कर दो तो वापस आ गया। जो भी आपने किया था, इफेक्ट किया था, वो खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। सो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये क्या है, जैसे कि ये देखो मोज़ेक है, सो मोज़ेक पे क्लिक करो। सो अब यहाँ पे फिर ये पूछ रहा है कुछ करने के लिए, तो इसको अप एंड डाउन करेंगे तो जो है सो कुछ अपना इफेक्ट इस पे डालेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा पिक्चर क्या डीम हुआ है, ब्लर हुआ है। सो these effects are there under the filter options. Okay, next to filter we have
this option is graphics mode. So graphics mode क्या है? So let us see what different options are available in graphics mode. Here you see grayscale, black and white, and watermark. Three options are there, and one is the default one. So default means in what form the picture was inserted, original picture, in that form it will come. But grayscale क्या है? grayscale पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखो grayscale में कन्वर्ट हो गया. आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट में करोगे तो देखो ऐसा हो गया, इस तरह से हो गया. वाटर मार्क में करोगे तो आप देखो वाटर मार्क में हो गया, इस तरह से आप जो है सो पिक्चर बिल्कुल मतलब बिल्कुल डीम हो गया. सो इट इज जस्ट लाइक वाटर मार्क, है ना. सो डिफरेंट ऑप्शंस आर देयर in the graphics mode. What different options are there? That is grayscale, black and white, and watermark, and what their effects are there that you have seen just now. So again what you can do, you can press Ctrl Z to bring it back to its original form. Okay, next to that let us see what it is. So this is color. So color पे क्लिक करो तो आप देखो ये सारा ऑप्शन है. अब कलर में देखो एक चीज कंप्यूटर साइंस में आपको ध्यान में रखना है कि ओनली 3 बेसिक कलर्स आर देयर. वन इज रेड, अनदर वन इज ग्रीन, एंड अनदर वन इज ब्लू. Three basic colors are there: red, green, and blue. So using these 3 basic colors in different proportions, we can create millions and millions of colors. All the colors what you can see, all these colors are made up of 3 basic colors: red, green, and blue in different proportion. Okay, for example, suppose right now we have selected this picture, and let us increase the portion of red color. So you keep your eyes on the picture, and I am increasing its this red component I am increasing, and you can see the effect that is taking place in the pictures. So it is turning reddish red ज़्यादा हो रहा है. ठीक है. So फिर इसको हम वापस कर देते हैं, इसको हमने 0 कर दिया. ठीक है. So now it is again back to its original form. ग्रीन करेंगे उसी तरह से आपका जो है सो इसका ग्रीन ये जो है सो ग्रीनिश वे में टर्न होता चला जाएगा, ग्रीन बनता चला जाएगा. ठीक है. सो क्या हम लोग कर रहे हैं, एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रीन कंपोनेंट को इंक्रीज कर रहे हैं. So if you are increasing the green component, then what will be the effect on that? So you can see here. Then again let us bring it back, and now again this time I am increasing the blue component. So you can see now it will turn bluish. So blue component को बढ़ा रहे हैं तो ये जो है सो bluish होना शुरू हो गया. So इस तरह से आप जो है सो basic 3 colors are there: red color, green color, and blue color. So out of these 3 colors, if you want to make any color in the world, that color can be made using these 3 colors in different proportions. Okay, so these are the things in the color component. Now this is what, this is brightness, and this is contrast, then this is what gamma. So brightness means brightness, आप टीवी भी देखते हो तो उसमें brightness बढ़ाना है या contrast करना है. So these effects these can be done. इसको आप जो है सो बढ़ा करके या घटा करके उस तरह से आप कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट फिर से इसको हम लोग डिफॉल्ट में लाते हैं. ठीक है. इसको 0 कर दो, कंपोनेंट को 0 करो. सो नाउ इट विल कम बैक टू ओरिजिनल फॉर्म. ओके. सो देखो अभी पिक्चर टूल बार गायब हो गया. पिक्चर टूल बार जब आप पिक्चर को सेलेक्ट करोगे तो पिक्चर टूल बार आपका वापस आ जाएगा. और नहीं आ रहा है तो फिर क्या करोगे आप, अगर पिक्चर टूल बार नहीं दिख रहा है तो आप क्या करोगे कि उसको जो है सो व्यू टूल बार एंड देन पिक्चर, जैसे इसको हमने बंद कर दिया. अब पिक्चर टूल बार यहाँ पे नहीं है तो पिक्चर टूल बार कैसे लाएंगे, क्लिक करो व्यू पे और क्लिक करो आप जो है सो इस पे टूल बार पे क्लिक करो, और देन उसके बाद फिर क्लिक करो आप पिक्चर पे. पिक्चर कहाँ है, इधर पिक्चर यहाँ पे, तो ये आपका आ गया टूल बार. सो हाउ टू ब्रिंग द पिक्चर टूल बार, क्लिक ऑन व्यू, देन क्लिक ऑन टूल बार, देन क्लिक ऑन पिक्चर्स. सो द पिक्चर टूल बार विल बी there on the screen. So using that picture toolbar you can do modification in your picture. Next to this is called transparency. ये transparency है. So transparency क्या है, transparency अभी इसका 0% है. तो जैसे जैसे transparency आप इसका बढ़ाएंगे क्या होगा, picture will become transparent, more transparent. So transparent means what, you can see through it. That is the meaning of transparency, है ना. So if the picture is transparent, completely transparent, that means what, you can see behind the picture what is there.
जैसे कि ग्लास देखते हैं तो ग्लास के इस पार से उस तरफ आप देख सकते हैं बिकॉज इट इज ट्रांसपेरेंट. सो ये जो ट्रांसपेरेंसी है it will increase or decrease the transparency of the picture. For example, let me do like this. Okay, so this will increase the transparency of the picture. So देखो पिक्चर धीरे धीरे गायब होना शुरू हो गया. दैट मीन्स अब हम जो है सो इसका बैकग्राउंड में ज़्यादा आसानी से देख सकते हैं इन कंपेरिजन टू अर्लियर वन. सो ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन ए बताता है आपको. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्लिप हॉरिजॉन्टली एंड फ्लिप वर्टिकली. सो फ्लिपिंग करने के लिए फ्लिप हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या होता है कि इसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर देगा. फ्लिप करने का मतलब पलट देना. जैसे इसको क्लिक करते हैं तो देखो आपने देखा इधर एक लड़का इधर था अभी इधर आ गया, हॉरिजॉन्टल फ्लिपिंग हुआ. ठीक है, फिर से हम हॉरिजॉन्टल फ्लिपिंग करते हैं, फिर लड़का इधर आ गया, लेफ्ट साइड में आ गया, राइट साइड में आ गया. इसको फिर से हॉरिजॉन्टल करेंगे तो लेफ्ट साइड में आ गया. सो दैट इज कॉल्ड फ्लिप हॉरिजॉन्टल. फ्लिप वर्टिकली सो ये इस तरह से हो गया. अभी देखो अप ये जो है सो अपवर्ड डाउन अपसाइड डाउन हो गया. इस तरह से फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजॉन्टल. सो दिस मेनी डिफरेंट इफेक्ट्स दैट कैन बी अप्लाइड ऑन पिक्चर यूजिंग पिक्चर टूलबार. सो दिस इज अ वे फॉर मॉडिफाइंग पिक्चर. दूसरा पिक्चर को मॉडिफाई करने के लिए क्या है, आप पिक्चर डायलॉग बॉक्स यूज करके पिक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं. तो पिक्चर डायलॉग बॉक्स का ये तो पिक्चर टूल बार है. सो हाउ टू ब्रिंग पिक्चर डायलॉग बॉक्स. सो पिक्चर डायलॉग बॉक्स लाने के लिए आप क्या करेंगे, क्लिक करो फॉर्मेट पे एंड देन क्लिक करो पिक्चर. फॉर्मेट में आप पिक्चर क्लिक करो पिक्चर. ठीक है, सो ये आपका देखो आ गया आपका पिक्चर डायलॉग बॉक्स. ठीक है, ये पिक्चर डायलॉग बॉक्स आ गया. यहाँ पे देखो दिस इज योर पिक्चर डायलॉग बॉक्स. कैसे हमने लाया इसको, फिर से बंद करते हैं. हाउ टू ब्रिंग पिक्चर डायलॉग बॉक्स, क्लिक ऑन फॉर्मेट देन क्लिक ऑन पिक्चर. So the picture dialog box will come there and so many options are there. There is another way to bring the picture dialog box. Simply double click on picture then the picture dialog box will appear. ठीक है, एक तो ये हो गया कि पिक्चर पे आप सिंपली डबल क्लिक करो पिक्चर डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. दूसरा कैसे हुआ, पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, पिक्चर को सेलेक्ट करने के बाद और फिर पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द वे टू ब्रिंग पिक्चर डायलॉग बॉक्स. अब इसमें देखो सो मेनी ऑप्शंस आर देयर. ये पिक्चर का टाइप बता रहा है. सो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपका ये है आपका क्रॉप. इस पिक्चर को थोड़ा सा हम इसको बढ़ा देते हैं. ठीक है, अभी इसको अच्छा इसको बंद करने के बाद ही इसको हम सेलेक्ट कर पाएंगे. सो इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया साइज को. ठीक है, अब पिक्चर डायलॉग बॉक्स लाया. राइट नाउ क्रॉप इज सेलेक्टेड. सो क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, आपको इसमें से ट्रिमिंग करना है कुछ मान लो कि. तो ट्रिमिंग करने के लिए आप कहाँ से ट्रिमिंग करते हैं, लेफ्ट से ट्रिमिंग करना है, राइट से ट्रिमिंग करना है, टॉप से ट्रिमिंग करना है या बॉटम से ट्रिमिंग करना है. सो आपको लग रहा है कि कुछ अनवांटेड पोर्शन है आपका, उसको ट्रिम करना चाहते हैं. सो लेफ्ट से मान लो ट्रिम करना चाहते हैं तो देखो यहाँ पे अभी ये जो हमारा यहाँ तक आ गया. सो दैट मीन्स दैट पोर्शन विल बी ट्रिम्ड. आप टॉप से भी कुछ ट्रिमिंग करना चाहते हैं तो इसको इंक्रीज करेंगे तो अब देखो हमारा ये अभी जो ए पोर्शन आपका ट्रिम हो जाएगा, लेफ्ट से ए पोर्शन ट्रिम हो जाएगा. सो फ्रॉम एनी साइड राइट लेफ्ट और टॉप और बॉटम कहीं से भी आप ट्रिमिंग कर सकते हैं. राइट से भी मान लो कि आपको ट्रिमिंग करना है तो राइट से भी बढ़ा दिया तो राइट साइड से भी ट्रिमिंग हो गया. सो अब ए पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉप हो जाएगा, हट जाएगा, खत्म हो जाएगा. ठीक है, सो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कीप स्केल्स और कीप इमेज साइज. सो अभी हम कीप स्केल कर रहे हैं, क्लिक करेंगे ओके. सो अभी देखो क्या हो गया, लेफ्ट साइड से ट्रिमिंग, राइट साइड से भी ट्रिमिंग हुआ और टॉप से भी ट्रिमिंग हो गया. फिर से हम अंडू कर देते हैं, वापस आ गया, मेरा ओरिजिनल फॉर्म आ गया. फिर से उस पिक्चर डायलॉग बॉक्स को लाएंगे तो डबल क्लिक करेंगे, पिक्चर डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आ गया. अभी हम क्या करते हैं, फिर से ट्रिमिंग करते हैं. क्लिक करो दिस, क्लिक करो लेफ्ट एंड टॉप से क्लिक कर रहे हैं और बॉटम से भी इस बार मान लो कि हम ट्रिमिंग कर रहे हैं इस तरह से इतना. अभी क्या कर रहे हैं, कीप इमेज साइज. सो कीप इमेज साइज जब करेंगे आप तो क्या होगा कि ये जो डायमेंशन है इमेज का वो उतना ही रहेगा और जो क्रॉप्ड जो इमेज है वो पूरा का पूरा साइज एकोमोडेट कर लेगा, पूरा का पूरा साइज, उसका साइज रिड्यूस नहीं होगा. मीन्स द पिक्चर का जो लेंथ है और विड्थ है वो मेंटेन रहेगा. कीप इमेज साइज का मतलब ये हो गया. ठीक है, सो अभी हम ओके करते हैं.
अच्छा फिर से इसको करते हैं, एक बार फिर से करते हैं, ठीक है। कीप इमेज साइज, और उसके बाद एक मिनट पहले इसको हम लोग अंडू कर देते हैं, ठीक है। पहले अंडू कर दो, वापस आ गए, फिर से अब जाएंगे यहाँ पे, और फिर से यहाँ पे हमने जो है सो एक किया, टॉप राइट से भी कुछ क्रॉपिंग किया, बॉटम से भी कुछ क्रॉपिंग किया, ठीक है। एक क्रॉपिंग किया और कीप इमेज साइज रख रहे हैं। सो अब यहाँ पे ओके कर दिए, तो देखो आपका जो डायमेंशन था पिक्चर का वो वही रह गया, ठीक है, लेकिन आपका पिक्चर में क्रॉपिंग हो गया, ठीक है। सो इस तरह से आप जो है सो फिर से कंट्रोल जेड करके हम पिक्चर को वापस ला लेंगे। सो इस तरह से आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन देख लिया आपने कि किस तरह से क्रॉपिंग किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इसमें आप बॉर्डर लगा सकते हैं, देखो ये बॉर्डर है। सो बॉर्डर लगाने के लिए ये सारा ऑप्शन है बॉर्डर का। सो बॉर्डर लगाने के लिए आप जो है सो पिक्चर में बॉर्डर लगा सकते हो, जैसे कि ये यहाँ पे नो बॉर्डर, कोई भी बॉर्डर नहीं होगा। यहाँ पे सेट ऑल 4 बॉर्डर्स, इसको क्लिक किया तो चारों तरफ से बॉर्डर लगेगा। अब यहाँ पे बॉर्डर का स्टाइल देखो, डिफरेंट स्टाइल्स आर देयर, सो यू कैन सेलेक्ट एनी वन स्टाइल फ्रॉम देयर। सपोज आई सेलेक्ट दिस वन, दिस स्टाइल, सो क्लिक ऑन दैट वन, ओके। उसके बाद यहाँ से आप शैडो स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पे बॉर्डर का कलर भी चूज कर सकते हो, बहुत सारा ऑप्शन है इसमें, बहुत सारा कलर है, किस कलर का आपको बॉर्डर चाहिए। सो मान लो कि हम इस कलर का बॉर्डर अप्लाई करते हैं, अब उसके बाद ओके कर देते हैं, तो देखो हमारा पिक्चर में इस तरह से आपका बॉर्डर आ गया, ठीक है। सो इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर से हम पिक्चर टूल बार में आ गए, ऐसे पिक्चर डायलॉग बॉक्स में आ गए। अब यहाँ पे बैकग्राउंड ऑप्शन है। सो बैकग्राउंड में आप जो है सो पिक्चर के बैकग्राउंड में क्या बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, so you can select any color from there and you can give the background color to the picture. So here you can see we have given blue color in the background. So ये अगर यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको उस इफेक्ट को क्लियरली देखने के लिए आप जो है सो क्या कर सकते हैं, गैलरी से कोई पिक्चर इंसर्ट कर लो। मान लो कि आप जो है सो ये पिक्चर ले रहे हैं, इन्वायरमेंट से कुछ पिक्चर लिया आपने, ये वाला पिक्चर लिया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम जो है सो पिक्चर डायलॉग बॉक्स लाएंगे और यहाँ से बैकग्राउंड डाल देते हैं, इस बैकग्राउंड को डाल देते हैं, ओके कर दिए। सो ये आपके देखो यहाँ पे क्या हो गया, बैकग्राउंड में आपका इमेज आ गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन डू, वी कैन अप्लाई चेंजिंग इन द पिक्चर्स, है ना, यूजिंग पिक्चर टूल बार एंड यूजिंग पिक्चर डायलॉग बॉक्स, ठीक है। सो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसको हम लोग जो है सो हटा देते हैं, डिलीट करते हैं, दोनों पिक्चर को डिलीट कर देते हैं। इसको गैलरी को भी हटा देते हैं, सो गैलरी भी चला गया। अभी हम लोग करते हैं ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। सो वी कैन ड्रॉ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन द पिक्चर इन आवर डॉक्यूमेंट्स, सो दैट ऑल्सो वी कैन डू। सो देखो यहाँ पे नीचे में आप देखो ये सारा ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स है, these different types of objects we can draw in our document. So if this toolbar is not available, then what you can do, you can bring it. How to bring it? You click on view, then click on toolbar and then click on drawing. toolbar के बाद इसमें drawing option. So देखो अभी selected है, clicked है, so that's why it is visible here. लेकिन अभी फिर से हम इसको अगर ये कर देंगे तो अभी गायब हो गया, तो फिर से वापस लाने के लिए क्या करेंगे, click on view, click on toolbar and then click on drawing. So now again it is available, okay. So using these many options, different types of objects we can draw, जैसे कि यहाँ पे आपने ये कर लिया, एक डायमंड बना लिया, ये जो है सो मान लो कि एक एलिप्स बना लिया, इस तरह से आप इसमें आपको कुछ लिखना है तो इसमें आप लिख सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स लेकर के आप इसमें कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने इसमें कुछ लिखना है तो आप लिख भी सकते हो इस तरह से, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ डिफरेंट ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, है ना। इसको कैसे लाना है देख लिया, व्यू, टूल बार्स एंड then drawing, then this toolbar will be available, and using these toolbars we can draw different types of objects on in our document, okay. Now here at the same time here we can see, suppose so many different pictures are there in your document, जैसे कि अभी इसको हम लोग डिलीट करते हैं। अभी हम लोग देख लिए क्या क्या देख लिए, यहाँ पे देखो कि ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स ये सारा हम लोग देख लिए, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स है या फिर ये जो आप बोल रहे हो कि जैसे आपने यहाँ पे ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स बनाया,
तो इसका जो है सो आप यहाँ से आप इसका देखो आप प्रॉपर्टीज भी सेट कर सकते हो। दीज आर द प्रॉपर्टीज रिलेटेड विद द ड्राइंग ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ लाइन का स्टाइल, सो लाइन का स्टाइल यहाँ से आप ले सकते हो, कोई भी एक सेलेक्ट किया तो देखो यहाँ पे अब डॉटेड लाइन आ गया बिकॉज आई हैव चेंज इट्स लाइन स्टाइल प्रॉपर्टी। अभी कुछ और लेते हैं, सो ऐसा आ गया, ठीक है। अभी कुछ और ले लेते हैं, मान लो ऐसा ए वाला लेते हैं, सॉरी ए वाला लेते हैं। सो अब देखो आपका इस तरह से आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो इसका ए जो है सो थिकनेस इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ से कलर भी डाल सकते हैं, कलर येलो कर दिया, ठीक है। आप कलर को फिल, कोई कलर को फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर फिल भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप जो है सो कलर कोई फिल कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ, यहाँ से आप जो है सो कोई भी कलर ले लेंगे तो यहाँ पे आप उसको कलर को फिल भी कर सकते हैं। आपने जो भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें आप कलर को डाल भी सकते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन draw different objects using drawing toolbars, and we can change their properties also. Okay, so that we have covered now. So now let us discuss grouping of different objects. So suppose in your document you have inserted two or three different many different pictures are there in your document. For example, suppose you have inserted one image from gallery like this. You have taken this one, this is one computer, एंड इसको रिसाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। फिर उसके बाद आप जो है सो एक इसको ले लिया, अपने मॉडेम को ले लिया, इसको भी राउटर को थोड़ा सा छोटा कर लिए, और फिर एक और ले लिए सीपीयू को ले लिया, इसको भी ले लिया, ठीक है। थ्री डिफरेंट पिक्चर्स आर अवेलेबल नाउ। Now, okay, so now you see these pictures are not grouped. Not grouped का मतलब क्या हुआ, they are existing separately, independently. Means देखो, जैसे इसको हमने select किया तो only this is selected and you can move here and there, so only this picture is moving. Likewise you can move here and there, this one, ऐसे आप independently, individually आप उसको move कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनको ग्रुप में डाल दें, अगर आप उसको ग्रुप बना दें तो क्या हो गया, देन ऑल ऑफ देम विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। ओके, सो हाउ टू ग्रुप इट, इसको ग्रुप परफॉर्म ग्रुपिंग। ओके, so in order to perform grouping and ungrouping, first of all we need to insert multiple images in our document. Okay, so if you are inserting the pictures in this way, like this, insert picture from file, and suppose from here you are inserting some pictures, just double click and insert. So this picture is there, and suppose one more picture, let me insert, and then picture, and let me insert this one. oh, इसको अनसेलेक्ट करके इंसर्ट करना है ना, तब वो दूसरा पिक्चर होगा, नहीं तो उसी को रिप्लेस कर देगा। इंसर्ट पिक्चर and then the second picture, this one. So two pictures we have inserted. Now if you want to perform grouping, then what you have to do, you have to select both of them and then you can perform grouping. So if you are selecting, if you are trying to select, suppose shift and then select this one, okay, press this one and then shift this one, so you will not be able to select in this way. Okay, so how to select, how to perform grouping? So for that, what you have to do, delete all the pictures. Now you go on file and then click on new and then click on drawing, file, new and drawing. Okay, file, new and drawing. So now this new draw of document will be open. Here what you can do, you can insert multiple pictures and then here selecting can be done. Okay, so here what you can do, you can insert from gallery or you can insert from the from file also. So here let me insert these pictures. One picture I have inserted, let us insert another one. So another picture I have inserted, and then let me insert one more picture. Suppose this picture I have inserted. Three pictures I have inserted. Okay, so here you can see
these three pictures are there. So now what you have to do, you can select here by simply pressing shift button and then clicking on each picture. Means if you have to select pictures, suppose this I have selected, then press shift button, hold shift button and then click other picture, then click other pictures, so all the pictures will be selected. After selecting this picture, simply what you have to do, you either you can copy or you can cut it from here, because here we do not need, this is our not main document. So simply here this document we have opened for inserting multiple picture and selecting all of them together. So after selecting all of them together, what you can do, you can perform copy or cut. So suppose here I am doing cut, control X. So we have cut the picture. Now simply what you do, you close this document, close, no need to save, simply close it. So this is our main document. Here we want to perform grouping. So here what you have to do, here you have to paste it. So all the pictures we have brought it in our main document, and here you can see if you are selecting any picture, you see all the pictures are selected. ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, किसी भी आप पिक्चर पे क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाएगा कि सारा का सारा पिक्चर सेलेक्ट हो जा रहा है, और इसको आप इधर से उधर मूव करो, सो देखो ऑल ऑफ देम आर मूविंग टुगेदर। मीन्स क्या हो गया कि अब जो है सो ये पिक्चर, सारे पिक्चर ग्रुप हो गए, एक ग्रुप में बन गए। ठीक है, सो इनको अगर ग्रुप से आपको अनग्रुप करना है तो फिर क्या करेंगे, सेलेक्ट करके आप जो है सो फॉर्मेट में जाएंगे, और फॉर्मेट में देखो यहाँ पे ग्रुप ऑप्शन है। सो ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अब अनग्रुप पे क्लिक कर दोगे, सो व्हाट विल हैपन, नाउ इट विल बी अनग्रुप। देखो अब आप इंडिविजुअल पिक्चर को आप सेलेक्ट कर पा रहे हो, यू कैन सेलेक्ट देम इंडिविजुअल पिक्चर। ओके, सो इफ अगर फिर से इसको आपको ग्रुप करना है तो फिर अब यहाँ पे आप कर सकते हैं, सेलेक्ट शिफ्ट प्रेस करके आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम इनको सबको सेलेक्ट कर लिए, अब यहाँ पे हो सकता है मेन डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबको सेलेक्ट कर लिया, फिर आप चाहे तो यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे एंड ग्रुप एंड देन क्लिक ऑन ग्रुप। सो व्हाट विल हैपन, नाउ एक ग्रुप बन गया, ग्रुप ऑफ पिक्चर बन गया। अब इसको आप जो है सो फिर से इधर से उधर ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन परफॉर्म ग्रुपिंग एंड वी कैन परफॉर्म अनग्रुप ऑफ। एंड वी हैव टू डिस्कस दिस वन, पोजिशनिंग इमेज इन द टेक्स्ट। ठीक है, ये वाला अभी कर लेते हैं, पोजिशनिंग इमेज इन द टेक्स्ट, दैट वन। ठीक है, सो पोजिशनिंग इमेज इन द टेक्स्ट मीन्स what we have to do, here we have to study about these things। देखो पोजिशनिंग इमेज इन द पिक्चर्स इन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, सो वहाँ पे आपको तीन चीज जो है सो इतना चार चीज क्लियर होना चाहिए। एक तो है कि आपका अरेंजमेंट, दूसरा है आपका अलाइनमेंट, तीसरा है एंकर पॉइंट, और चौथा है आपका टेक्स्ट रैपिंग। ठीक है, सो अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, सो अरेंजमेंट मीन्स व्हाट, इट रेफर्स टू प्लेसमेंट ऑफ इमेज ऑन एन इमेजिनरी वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, इट कंट्रोल्स हाउ ग्राफिक्स आर स्टैक्ड अपॉन ईच अदर। इट मीन्स व्हाट, ये मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो कि एक वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस यानी कि आप जमीन में धरती पे कुछ जो है सो आप एक डंडा खड़ा कर दिया, झंडा खड़ा कर दिया, अब उसके बाद वो जो उसके रेफरेंस में, ठीक है ना, वर्टिकली जो डिफरेंट इमेज है, हाउ दे आर अरेंज्ड, हाउ दे आर अरेंज्ड with reference to that vertically axis, vertical axis। So arrangement of objects with means one another in with reference to a vertical axis, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि एक जैसे बहुत सारा ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा, दूसरा ऑब्जेक्ट के, ऐसे मतलब एक के ऊपर एक बहुत सारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सो एक के ऊपर एक जब हम बहुत सारा ऑब्जेक्ट को रखते हैं, सो दैट इज कॉल्ड स्टैक। स्टैक का मतलब क्या होता है, स्टैक ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं उसको। सो स्टैक का मतलब होता है कि इफ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस वन ओवर अनदर लाइक दिस, है ना, एक के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे इसको आप इस तरह से देख सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है इस तरह से, उसके ऊपर में दूसरा रख दिया, ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया। सो ये क्या होगा, दिस इज कॉल्ड स्टैक ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैक। सो दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे अरेंजमेंट का जो बात कर रहा है वही अरेंजमेंट का बात किया जा रहा है। ठीक है, सो
हाउ दिस अरेंजमेंट इज वर्क। सो सपोज यहाँ पे आपने क्या किया कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यह है आपका, ये ऑब्जेक्ट है, ये पिक्चर है, दूसरा पिक्चर आपने ले लिया इस तरह से, मान लो कि इसको हटा दो, और दूसरा पिक्चर जो है सो आप फिर से आप इंसर्ट कर रहे हो, फिर से जाओ यहाँ पे और उसको इंसर्ट करो, दूसरा पिक्चर को क्लिक करो और मान लो कि दूसरा पिक्चर आप ये ले लिए, ठीक है। सो ये पिक्चर आ गया, इसको आपने ऐसे छोटा कर दिया, ठीक है, इस तरह से। इस तरह से आ गया। एक और पिक्चर ले लेते हैं, तीसरा पिक्चर, क्लिक एंड देन इंसर्ट एंड द थर्ड पिक्चर लेट मी टेक दिस वन, ताकि आप आसानी से उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें। ये पिक्चर हमने ले लिया, थर्ड पिक्चर, ठीक है। थर्ड पिक्चर ऐसे प्लेस कर दिया। ओ देखो, पहला पिक्चर को सेलेक्ट बिना सेलेक्ट उसको पहले अनसेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी नया पिक्चर इंसर्ट करेंगे। सो अभी हम अनसेलेक्ट करके फिर से इंसर्ट कर रहे हैं। सो क्लिक ऑन दैट एंड देन क्लिक ऑन पिक्चर। अगर आप सेलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे तो उसी को रिप्लेस कर देगा ना। सो दूसरा पिक्चर हमारा कौन था, ये वाला था, इसको ले लिया। तो इसको फिर से हम रीसाइज कर देंगे ताकि आपको तीनों पिक्चर दिखाई दे। अभी आपको तीनों पिक्चर दिख रहा है ना, एक पिक्चर, फर्स्ट पिक्चर, सेकंड पिक्चर, this one, and third picture is this one. Okay, now you move this picture. तो देखो इधर उधर मूव करने से भी क्या हो रहा है, आपका ये पिक्चर ऊपर नहीं आ रहा है, जो उसका ऑर्डर है उसी ऑर्डर में रह रहा है, जिस ऑर्डर में वो पिक्चर है उसी ऑर्डर में रह दिख रहा है, ठीक है। एक ऊपर में, सबसे ऊपर में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पिक्चर का एक स्टैक बन गया, एक पिक्चर दूसरे पिक्चर के ऊपर में पड़ा हुआ। मैं आपको दिखाने के लिए उनको थोड़ा सा साइड वाइज कर दिया हूँ, दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे आप क्लिक करो फॉर्मेट में। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं अरेंजमेंट, व्हाट वी आर लुकिंग राइट नाउ, वी आर सीइंग अरेंजमेंट, ठीक है। सो अरेंजमेंट को देखने के लिए, समझने के लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट एनी पिक्चर। जैसे मान लो मैंने इसको सेकेंड पिक्चर को सेलेक्ट किया, क्लिक ऑन फॉर्मेट एंड देन क्लिक ऑन दिस अरेंज, अरेंज पे क्लिक करो। सो अरेंज में देखो इतना सारा ऑप्शन है, ब्रिंग टू फ्रंट, फॉरवर्ड वन, बैक वन, सेंड टू बैक। तो जैसे आप सेंड टू बैक करेंगे तो क्या होगा, वो चला जाएगा, बैक में चला जाएगा। सो अभी हम किस पिक्चर को सेलेक्ट किए हैं, सेकेंड पिक्चर को, तो सेंड टू बैक कर दिया। तो देखो अभी पिक्चर वो कहाँ चला गया, मेरा सेकेंड पिक्चर बैक में चला गया, ठीक है। अभी जो है सो फिर से क्लिक करो, अभी जो बैक में जो पिक्चर है उसको सेलेक्ट किया हूँ, क्लिक करो फॉर्मेट एंड देन क्लिक ऑन अरेंज एंड नाउ यू क्लिक ऑन बैक वन। बैक वन तो ऑलरेडी बैक में है ही, फॉरवर्ड वन, सो क्या होगा, फॉरवर्ड वन करेंगे तो क्या होगा, एक पिक्चर ऊपर आ जाएगा, ठीक है, एक ऊपर है। तो पहले पूरा बैक में था, अभी मिडिल में आ गया, ठीक है। अभी मान लो कि हम इस पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे फॉर्मेट, क्लिक ऑन अरेंज एंड देन क्लिक ऑन बैक वन। सो व्हाट विल हैपन नाउ, इट, ये जो फ्रंट में जो पिक्चर था वो क्या चला गया, एक पिक्चर बैक चला गया। पूरा बैक करने के लिए सेंड टू बैक करेंगे तो पूरा बैक में चला जाएगा। अभी जैसे ये वाला हमने सबसे लास्ट वाला पिक्चर को सेलेक्ट किया है, अगेन क्लिक ऑन फ्रंट, फॉर्मेट, देन क्लिक ऑन अरेंज एंड देन क्लिक ऑन ब्रिंग टू फ्रंट। सो ब्रिंग टू फ्रंट किया तो क्या हुआ, वो जो बैक में पिक्चर था वो क्या आ गया, फ्रंट में आ गया। सो दिस इज कॉल्ड अरेंजमेंट। इफ मल्टीपल पिक्चर्स आर स्टैक वन ओवर अनदर, है ना, सो उनमें हम लोग जो है सो अरेंजमेंट कर सकते हैं, किसी को बैक में कर सकते हैं, किसी को फ्रंट में कर सकते हैं, किसी को इन बिटवीन कर सकते हैं, लाइक दिस वी कैन डू, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड अरेंजमेंट। नेक्स्ट वी हैव टू सी अलाइनमेंट। सो अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, अलाइनमेंट is the vertical or horizontal placement of graphic with respect to choose an anchor point. So पहले इसमें आपको समझना है एंकर पॉइंट क्या होता है। Alignment is closely related. Alignment will work with the anchor point only. So anchor point क्या होता है? So anchor point means it refers to the reference point for the graphics. Reference point मतलब किसके रेस्पेक्ट में आपको अलाइनमेंट करना है, ठीक है ना। एंकर पॉइंट इज द, एंकर पॉइंट वर्क्स एज अ रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट ऑफ रेफरेंस। जैसे हम लोग बोलते हैं कि टॉप में ले जाओ, बॉटम में ले जाओ,
सेंटर में रखो। तो आप जब बोल रहे हो टॉप में ले जाओ, बॉटम में ले जाओ, सेंटर में ले जाओ, लेफ्ट में ले जाओ, राइट में ले जाओ, सो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अलाइनमेंट। सो जब हम लोग बोल रहे हैं कि टॉप बॉटम सेंटर, तो देयर मस्ट बी अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। किसके रेस्पेक्ट में टॉप में जाना है, किसके रेस्पेक्ट में बॉटम में जाना है, किसके रेस्पेक्ट में सेंटर में जाना है। सो दैट रेफरेंस इज कॉल्ड, दैट रेफरेंस इज नोन एज द एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट क्लियर है? क्या होता है एंकर पॉइंट? द पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर द ग्राफिक्स इन योर डॉक्यूमेंट। जैसे कि अब फिर से आप अपना डॉक्यूमेंट में चलो, अब एक सारे पिक्चर को डिलीट कर दो, एक पिक्चर को रखो। सो देखो ए जो आपका है ना, ये आप दिख रहा है, ये वाला ये दिख रहा है। हाँ सर। सो दैट इज कॉल्ड एंकर पॉइंट। ये आपका एंकर पॉइंट है, ठीक है ना। सो इस एंकर पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप पिक्चर को क्या अलाइनमेंट देना चाहते हैं। सो अलाइनमेंट इज ऑलवेज डन विद द रेफरेंस ऑफ द एंकर पॉइंट। और एंकर पॉइंट क्या होता है? सो एंकर पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर अ पिक्चर और ग्राफिक्स इन योर डॉक्यूमेंट। ओके, सो अलाइनमेंट करने के लिए आप जैसे एंकर पॉइंट ये है आपका, ठीक है। आप यहाँ पे जाओ, फॉर्मेट में जाओ एंड देन क्लिक ऑन दिस एंकर पॉइंट, ठीक है। तो देखो एंकर, अब यहाँ पे देखा, एंकर को आप सेट कर सकते हैं, एंकर टू द पेज। अगर टू द पेज कर देंगे तो अब देखो यहाँ पे पेज के रिस्पेक्ट में अब जो है सो ये क्या हो गया, पिक्चर का जो एंकर पॉइंट हो गया पेज के रिस्पेक्ट में हो गया। सो अब यहाँ पे क्लिक करो अलाइनमेंट, क्लिक करो अलाइनमेंट एंड देन क्लिक करो टॉप, सेंटर और बॉटम। सो बॉटम करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि एंकर पॉइंट इसका पेज के रिस्पेक्ट में है, तो अब हम फॉर्मेट अलाइनमेंट करेंगे और बॉटम करेंगे तो एकदम पेज का बॉटम में चला जाएगा, पेज का बॉटम में चला जाएगा। अगर हम यहाँ पे अलाइनमेंट करते हैं, अलाइनमेंट एंड सेंटर करते हैं तो पेज का सेंटर में आ जाएगा। फिर अलाइनमेंट करते हैं और टॉप करते हैं तो पेज का टॉप में आ जाएगा, बिकॉज इट्स एंकर पॉइंट इज सेट टू द पेज, है ना, पेज में किया हुआ है। इसको फिर से डिलीट कर देते हैं और फिर से हम एक पिक्चर इंसर्ट करते हैं। कोई एक पिक्चर इंसर्ट कर लिया, तो जैसे ही आप पिक्चर इंसर्ट करोगे उसका एंकर पॉइंट साथ साथ आ जाएगा, आपका एंकर पॉइंट आ गया। तो एंकर पॉइंट अभी जो है आपका, इसका एंकर पॉइंट अभी देखो क्या है, क्लिक ऑन फॉर्मेट एंड देन क्लिक ऑन दिस। सो 2 पैराग्राफ है, बाय डिफॉल्ट इट इज 2 पैराग्राफ। सो अब इसका जो आप अलाइनमेंट करेंगे तो इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली, पैराग्राफ के रेफरेंस में टॉप, बॉटम और सेंटर जो है सो वो लेगा। अभी यहाँ पे अलाइनमेंट में जाएंगे तो टॉप, सेंटर, बॉटम ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस तरह से आप जो उस पैरा के रेफरेंस में टॉप में जाएगा, बॉटम में जाएगा, सेंटर में जाएगा। समझ में आ गया? सो जो अलाइनमेंट और एंकर पॉइंट works together. What is alignment? So 3 different alignments are there: top, bottom or center. And which in what respect it is, it works with the reference point, anchor point. So anchor point क्या हो सकता है? Anchor point किसी ग्राफिक्स के लिए क्या हो सकता है? पेज हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है या टेक्स्ट हो सकता है ना। So different types of there. So anchor point is just the reference point for a graphics. Okay, so that is there. नेक्स्ट वी हैव टू सी एंकर पॉइंट के बाद ये एंकर पॉइंट हो गया, अलाइनमेंट हो गया। नेक्स्ट वी हैव टू सी टेक्स्ट रैपिंग। सो टेक्स्ट रैपिंग का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट रैपिंग का मतलब होता है कि अगर आपका ये डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट भी है, टेक्स्ट रैपिंग रेफर टू द रिलेशन ऑफ ग्राफिक्स टू सराउंडिंग टेक्स्ट। मतलब कभी कभी हम लोग डॉक्यूमेंट कुछ लिख रहे होते हैं और लिखने के साथ साथ उसमें कुछ पिक्चर भी डालना होता है, तो अब वो जो पिक्चर है और वो जो टेक्स्ट है उनके बीच में क्या रिलेशन है ना। रैपिंग टेक्स्ट रैपिंग रेफर्स टू द रिलेशन ऑफ ग्राफिक्स टू सराउंडिंग टेक्स्ट, है ना। क्या रिलेशन है? दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट रैपिंग। जैसे कि आप यहाँ पे आ जाओ, जैसे अब इसमें कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं। तो टेक्स्ट लेने के लिए हमने DT प्रेस करके F3 बटन डाल दिया, ये हमारा टेक्स्ट आ गया। अब इस पिक्चर को हम जो है सो इधर में ले जाते हैं। सो देखो अभी जो है आप क्या करो, क्लिक करो। सो यहाँ पे आप देखोगे टेक्स्ट रैप, रैप यहाँ पे आ गया। सो रैप का डिफरेंट ऑप्शन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैपिंग्स आर देयर। नॉन, बाय डिफॉल्ट इट इज नॉन। बिफोर, अगर बिफोर हम करते हैं तो क्या होगा, बिफोर, अभी हम बिफोर सेलेक्ट कर लिया, बिफोर ओके कर दिया। तो अब देखो जो टेक्स्ट है वो ग्राफिक्स का बिफोर में आ गया,
ग्राफिक का P4 में आ गया। इस तरह से आप कहीं भी रखोगे तो पहले टेक्स्ट आएगा, उसके बाद ग्राफिक्स आएगा, इस तरह से उसको एक कर लिया। फिर से आप रैपिंग में जाओ, रैपिंग में जाओ और रैप में जाकर के फिर से आप देखो यहाँ पे आफ्टर है, आफ्टर क्लिक करो। सो आप देखो इधर में आ गया टेक्स्ट रैपिंग आफ्टर द टेक्स्ट, इस तरह से। सो डिफरेंट ऑप्शंस आर देयर। आफ्टर पैरेलल कर दिए हमने, तो पैरेलल कर दिए तो क्या हो गया, आप ये जो है चारों तरफ उसका टेक्स्ट आ गया, चारों तरफ। सो these are different types of wrapping। फिर से हम यहाँ पे आ गए, थ्रू कर दिया, ठीक है। तो थ्रू करने से क्या होगा कि आपका जो है सो ग्राफिक्स टेक्स्ट का ऊपर में आ गया, इसके नीचे नीचे टेक्स्ट पास हो रहा है। बहुत सम टेक्स्ट आर इनविजिबल नाउ बिकॉज इट इज इन बिहाइंड द ग्राफिक्स। सो थ्रू करने पे ये प्रॉब्लम आ जाएगा कि आप जो है सो क्या है, some of the text will be invisible because it is hidden behind the graphics। okay, so that is there। then this one is the optimal। so optimal का मतलब होता है कि ये जो है सो जो सबसे बेस्ट इसको लगेगा वो चीज आपको ले लेगा अकॉर्डिंग टू दैट, है ना, अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट ऑफ द पिक्चर एंड द साइज ऑफ द पिक्चर। ये जो है सो इसको जो बेस्ट होगा वो आप लेगा, दैट इज द ऑप्टिमल रैपिंग, है ना। सो दिस इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैपिंग। So this is what we have to discuss in working with image and